रहा था, ठीक है। वी टॉक्ड अबाउट द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, ओके। अब हम बात करेंगे एक और चीज की, एंड वी टॉक अबाउट देयर कलर. We talk about the color of the transition metal compounds or the d block metal compounds. आज जब हम कलर की बात करते हैं, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के कलर की बात करते हैं, तो उनके कलर के मेनली हमारे कोर्स में दो रीजंस है. जब हम उनके दो रीजंस की बात करते हैं, तो पहला रीजन विच वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड द डी डी ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा. द डी डी ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है. अब होता यह है that when we talk about these elements, इनके अंदर d orbitals में इलेक्ट्रॉन होते हैं. And if we find the metal ion in which we have partially filled d subshell या incompletely filled d subshell, तो वहां पर due to the unsymmetric field of the ion surrounding it, the d subshells, आइए आइए आइए, the d subshells actually do not remain of the same energy. They split. उनकी एनर्जी में गैप आ जाता है, ठीक है. और क्योंकि उनकी एनर्जी में गैप आ जाता है, दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी डी सबशेल कैन मूव टू द हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबशेल. अब ये जो एनर्जी है, दैट जनरली फॉल्स इन द विजिबल रीजन, एंड दैट बिकम्स द कॉज ऑफ द कलर, ठीक है. तो लिख लीजिए डी डी ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा. क्या हो गया? क्या हुआ? ओके, लिख लीजिए. इफ द मेटल आयन डी ब्लॉक, कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन खत्म हो गया. हाँ, हम बात कर रहे थे डी डी ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा की. इफ द मेटल आयन has a partially filled d subshell, if the metal ion has a partially filled d subshell, okay, तो मैंने आपको क्या लिखवाया था? If the metal ion has a partially filled d subshell, that is d1 to d9, that is d1 to d9, then due to an unsymmetric field, then due to an unsymmetric field of the ions surrounding the metal ion, due to an unsymmetric field of the ions surrounding
the metal ion the d orbitals split to give different energy levels. Full stop. The electron shows the electron shows transition. The electron shows transition from from the lower energy orbital. Electron shows transition from the lower energy orbital of lower energy orbital to the higher energy orbital lower energy orbital to the higher energy orbital of the same subshell. Full stop. This energy usually falls this energy usually falls in the visible region. This energy usually falls in the visible region and makes the compound colored and makes the compound colored. Okay? Now this is the DD transition, and this is the major reason of the transition element compound to be colored. P ब्लॉक में था, ठीक है, प्लस के बाद पूछना. Okay, so that's what we talked about the DD transition element, DD transition. Once we have talked about the DD transition, now we are going to talk about one more thing. That is what we call as the charge transfer spectra. अब charge transfer spectra कब होता है? That is when the metal ion has an extremely high charge density and it is able to pull the electron from the anion. ठीक है, अब कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के? We have the example of the charge transfer spectra as MnO4 minus permanganate ion. ठीक है, हम परमैंगनेट आयन की बात करें, ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बता रहा हूं अभी. परमैंगनेट आयन की बात करें या Cr2O72 माइनस की बात करें, डायक्रोमेट आयन की. क्लियर? यानी कि और हम यहां पर CrO4 2 माइनस की भी बात कर सकते हैं, क्रोमेट की, या हम बात कर सकते हैं CrO3 की. ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, जो आयंस हैं, दीज आर सपोजेडली D0 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहां पर ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 में, +6 में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो +7 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना नहीं चाहिए डी सब शेल के अंदर जो ट्रांजिशन शो कर सके. ओके, लेकिन ये फिर भी कलर्ड है. नाउ व्हाई आर दे कलर्ड? ये वाले आयंस कलर्ड क्यों हैं? जब हम इन आयंस की कलर की बात करते हैं, देन इन दैट केस यहां पर ये मैंगनीज का एम्प्टी डी सब शेल है, ये 3D सब शेल है मैंगनीज का.
3d subshell of manganese which is empty, it has empty orbitals. यहां पर हमारे पास 2p ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। अगर कैटायन की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो 3d ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है, और क्योंकि इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है इसलिए द इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम द फिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ द एनायन टू द एम्प्टी 3d ऑर्बिटल ऑफ द कैटायन, ठीक है। अगेन दिस एनर्जी फॉल्स इन द विजिबल रीजन and which makes the compound colored. दिस ट्रांसफर, क्योंकि इस ट्रांसफर में क्या होता है कि एनायन और कैटायन के चार्ज में चेंज आ जाता है, एनायन से चार्ज निकलकर कैटायन में चला जाता है या कैटायन का चार्ज कम हो जाता है, तो इसलिए इसे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ दिस इज, देख लीजिए, विजिबल रीजन जो हमें कलर दिखाई देते हैं ये लाइट का, विबग्योर जो है वो विजिबल रीजन है। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, देखो कोई भी स्पेक्ट्रा अगर विजिबल रीजन में होगा तो ही हमें नजर आएगा, अदरवाइज हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। लिख लीजिए, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके कलर अलग अलग हैं, और जहां तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सवाल है वहां पे उनके कलर इस बात पे डिपेंड कर जाते हैं कि उनके साथ एनायन कौन सा है, क्योंकि द एनायन इन्फ्लुएंस द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। तो क्योंकि एनायन डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को इन्फ्लुएंस करता है इस वजह से वो कलर को भी इन्फ्लुएंस कर देता है। क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+, और हर कंपाउंड क्रोमियम 3+ का ग्रीन ही नहीं होगा, मोस्ट ऑफन ग्रीन होते हैं लेकिन लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, अलग अलग कलर पे डिपेंड कर जाता है। रेड, येलो भी क्रोमियम 6+ है, वो येलो क्रोमियम 6+ है, रेड भी क्रोमियम 6+ है, ऑरेंज भी क्रोमियम 6+ है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्पीशी आर देयर। ठीक है, तो जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके कलर इस बात पे डिपेंड कर जाते हैं कि उनका सॉल्ट कौन सा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द filled orbital of the anion to the empty orbital, filled orbital of the anion to the empty orbital of the cation, filled orbital of the anion to the empty orbital of the cation by absorption of energy, by absorption of energy in the visible region gives, in the visible region gives the charge transfer spectra. जी, क्रोमेट लिखा है सामने, क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड, और मैग्नेट आयन। ठीक है, okay, so that's what we have as the reason of the color of the transition metal compounds.
अच्छा, अब यहां पर हमने जब ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड की बात कर ली, तो यहां पे क्वाइट ऑब्वियस है कि चलो हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की भी बात कर लें। जब हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की बात करते हैं, तो लैंथेनाइड के अंदर वी फाइंड दैट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल लैंथेनाइड एलिमेंट्स इज +3। ठीक है। इन केस ऑफ lanthanide element, the four f orbitals, they are of extremely low energy and they are not available for bond formation. तो f orbitals in general bond formation में participate नहीं करते, तो इस वजह से lanthanide के अंदर most stable oxidation state becomes +3। ठीक है, लिख लीजिए। In case of lanthanide element, in case of lanthanide element, the most stable oxidation state is +3. In case of lanthanide element, the most stable oxidation state is +3. ठीक है। Clear? The f orbitals, the f orbitals being deep inside the f orbitals being deep inside do not generally take part in bond formation, do not generally take part in bond formation। ठीक है, full stop। The lanthanides may show an oxidation state of +2 or +4, may show an oxidation state of +2 or +4 if it gives a stable configuration, of F0, F7, F0, F7 और F14, F0, F7 और F14। ठीक है, फुल स्टॉप। बट the +2 oxidation state is a strong reducing agent while +4 is a strong oxidizing agent, while +4 is a strong oxidizing agent। एक सिंपल सी बात यह है कि ये जो लैंथेनॉइड्स हैं, दे वांट टू बी इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 और +4 हमने जबरदस्ती बना दी है,
तो अगर +2 बना देंगे तो +3 में आने की कोशिश करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। अगर हम +4 बना देंगे तो +3 में आने की कोशिश करेगा, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द लैंथेनाइड्स एंड लैंथेनाइड एलिमेंट्स। अब जब हम एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में बताया था कि एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप द एनर्जी गैप बिटवीन द सबशेल्स बिलोंगिंग टू द एडजेसेंट द और shells, the energy gap between subshells belonging to adjacent shells decreases. 3D और 4s के बीच में गैप डाउन द ग्रुप कम होता है। ठीक है, 3D और 4s के बीच का गैप से 4D और 5s के बीच में गैप कम है, 6D और 7s के बीच में गैप और भी कम है। इसी तरीके से अगर हम 4F और 5D की बात करें तो उसमें गैप ज्यादा है, लेकिन अगर 5F और 6D की बात करें तो उसमें गैप कम है। इज दैट क्लियर? तो जब हम एक्टिनॉइड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एक्टिनॉइड एलिमेंट्स में F सबशेल, N-2F सबशेल, दैट इज 5F सबशेल और 6D सबशेल के बीच में गैप कम है। तो एक्टिनॉइड्स में F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्टिनॉइड्स में F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं तो एक्टिनॉइड्स हैव मच मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दैन लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड मोस्टली +3 शो करते हैं और रो पिट के वो +2 +4 कोई कोई शो कर जाता है, लेकिन जब हम एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं तो +3 +4 +5 +6 +7 +7 तक तो वो कर ही जाते हैं। इसका रीजन ये है कि F सबशेल पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और इसका इफेक्ट ये है कि एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री लैंथेनॉइड की केमिस्ट्री से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि एक्टिनॉइड में तो आपको एक ही, लैंथेनॉइड में तो आपको सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट डील करनी है, एक्टिनॉइड्स में आपको कई ऑक्सीडेशन स्टेट डील करनी पड़ जाती है। नहीं, वो बॉन्ड उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि the F subshell also participates in bond formation. And F subshell क्यों participate करता है? क्योंकि as we move down the group, the energy gap between 5F and 6D is less. Is it okay? अब लिख लीजिए. In case of actinoids, the 5F orbitals the 5F also take part, the 5F orbitals also take part in bond formation which allows actinides to show many more oxidation states many more oxidation state than lanthanoids. ठीक है? Is that clear?
कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके, दैट्स व्हाट वी हैव एज द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं उनके कलर की। जब हमने बात की थी ट्रांजिशन मेटल की, तो मैंने आपसे ये कहा था कि ट्रांजिशन मेटल का कलर इस बात से चेंज होता चला जाएगा कि उसके साथ कौन सा एलिमेंट या कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर डी सबशेल की बात है और डी सबशेल की स्प्लिटिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड कर जाती है। लेकिन जब हम लैंथेनॉइड्स की या एक्टिनॉइड्स की बात करें, इनफैक्ट लैंथेनॉइड्स की बात करते हैं, तो लैंथेनॉइड का कलर डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं है, एफ ट्रांजिशन की वजह से है। एंड एफ ऑर्बिटल्स बीइंग डीप इनसाइड, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय सराउंडिंग आयंस। तो लैंथेनॉइड आयंस का कलर फिक्स्ड है। और फर्दर एक अजीब सी बात देखी गई है कि एफ एन एंड F14-N का कलर सेम है। ठीक है, यानी कि F1 और F13, F2 और F12, F3 और F11, इनके कलर्स सेम है। ठीक है, लिख लीजिए, द कलर ऑफ लैंथेनाइड आयंस, कलर क्या शो करता है बता तो रहा हूं, द कलर ऑफ लैंथेनाइड आयंस is due to FF transition. The color of lanthanide ions is due to FF transition, which is not affected by the surrounding ions. ठीक है, is this clear? That is what we have as the color of the lanthanide ions. अच्छा, ये हमने कलर की बात कर ली, हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली, और अब एक छोटी सी बात और हम करेंगे एंड वी विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर, and that is the preparation of two different compounds of the transition metals. और वो जो दो कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 and we are going to talk about the preparation of potassium dichromate. ठीक है, तो पहले let us talk about the preparation of potassium dichromate. ठीक है, talking about the preparation of potassium dichromate, we find that the preparation of dichromate starts the preparation of potassium dichromate starts from FeCr2O4. Now this is what we have as a chromite ore. अब इस क्रोमाइट ओर को अगर कार्बन से ट्रीट कर दिया जाए तो ये Fe+2Cr+4CO बना देगा। ठीक है, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड फेरोक्रोम। फेरोक्रोम वेरी ऑब्वियसली इज द अलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। अब ये जो फेरोक्रोम अलॉय है, दिस अलॉय इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टील। ठीक है, इसे स्टील की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की प्रिपरेशन में फेरोक्रोम को यूज कर लिया जाता है। अच्छा, इस फेरोक्रोम अलॉय को, ये जो क्रोमाइट है, इसे ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ये जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये तो कन्वर्ट हो जाता है Na2CrO4 में, और ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में। ठीक है, Fe2O3 तो नीचे सेटल हो जाता है, दिस डिसॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, अब इसे सोडियम क्रोमेट को ट्रीट किया जाता है H+ के साथ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें समझनी है, वो ये कि अगर CrO4 2- को हम H+ के साथ ट्रीट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cr2O7 2- प्लस H2O में। ठीक है, ठीक है, और अगर हम Cr2O7 2- को OH- के साथ ट्रीट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टू CrO4 2- प्लस H2O में। ठीक है, एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लो, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, there isn't any change in oxidation state. This is not a redox reaction. ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आराम से आ सकता है, which of these is not a redox reaction? ठीक है, इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम है, these reactions are called metathesis reaction. These reactions are called metathesis reaction. Okay, so डायक्रोमेट एंड क्रोमेट आर इंटरचेंजेबल। तो यहां पर जब इसको H+ से ट्रीट किया जाता है तो this is going to get converted into Na2Cr2O7। ठीक है, फिर इसे ट्रीट किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ। अब जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां पे इस मिक्सचर के अंदर हमारे पास फिर से 4 सॉल्ट्स बन जाएंगे। 4 सॉल्ट्स में हमारे पास एक होगा पोटेशियम क्लोराइड, एक होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक होगा सोडियम क्लोराइड, एक होगा सोडियम डाइक्रोमेट। Amongst these 4 salts, potassium dichromate is the least soluble, और वो लीस्ट सॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और K2Cr2O7 बन जाएगा। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि हम यहां पे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज कर रहे हैं? जब हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज कर रहे हैं? ऑब्वियस आंसर है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, तो इस वजह से सोडियम डाइक्रोमेट पहले बनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल, चलो हमने सोडियम डाइक्रोमेट बना लिया, तो फिर उसे पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? सोडियम डाइक्रोमेट यूज कर लेंगे। द आंसर इज सोडियम डाइक्रोमेट इज deliquescent. That is, it absorbs moisture from atmosphere. Potassium dichromate is not. क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट डेलिक्वेसेंट नहीं है, इसलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन टाइट्रेशंस। प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड उस सब्सटेंस को कहा जाता है जिसका हम नोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन डायरेक्ट वेइंग से बना सकते हैं। मतलब कि हमें जितना हमने वे किया है, हमें पता है हमने इतना वे किया है, हमें यह पता है कि इसमें और कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो दोज आर कॉल्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। और दूसरे प्राइमरी स्टैंडर्ड हमें पता है, एक है ऑक्सैलिक एसिड, क्वाइट फेमस। ऑक्सैलिक एसिड इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। देन वी हैव द मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। क्लियर? तो ये यूज किए जाते हैं। Is it okay? So that is what we have as the primary standard. तो ये है हमारे पास प्रिपरेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट की।
अब चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट पर। क्लियर? तो जब हम पोटेशियम पर मैंगनेट की प्रिपरेशन की बात करते हैं, कुछ पूछना है यहां तक? एनी कंफ्यूजन टू दैट? चलिए, टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट की प्रिपरेशन शुरू होती है MnO2 से। MnO2 इज पायरोलुसाइट, दैट्स एन ओर ऑफ मैंगनीज। ठीक है, इस पायरोलुसाइट को KOH या फिर K2CO3 के साथ फ्यूज कर दिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको फ्यूज किया जाता है तो दिस फॉर्म्स K2MnO4। पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, अब इस पोटेशियम मैंगनेट को हमें पोटेशियम पर मैंगनेट में कन्वर्ट करना है। तो पोटेशियम पर मैंगनेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। जो सबसे पहला ऑक्सीडेशन का तरीका है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। अगर इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाए तो ये KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, नेगेटिव स्पीशीज गोइंग टू गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके इट इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इट इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज। तो ये MnO4 2 माइनस से ऑक्सीडाइज होकर MnO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो सब्सटेंस यूज किया जाता है दैट इज ओजोन। Ozone being a very strong oxidizing agent is able to convert K2MnO4 into KMnO4 along with KOH. ठीक है, further another substance which can be used is chlorine. Chlorine is able to convert it into KMnO4 plus KCl. ठीक है, सरप्राइजिंगली एक और सब्सटेंस यूज होता है इसको चेंज करने के लिए, एंड दैट सब्सटेंस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं, फिर ये K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट कैसे कर पाता है? द आंसर टू दैट इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो पीएच को थोड़ा कम कर देता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। K2MnO4 की प्रॉब्लम यह है कि इट इज स्टेबल ओनली इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम। जैसे ही आप उसको पीएच को थोड़ा भी कम करोगे, दिस K2MnO4 इज गोइंग टू disproportionate to give MnO4 minus and MnO2। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी MnO4 2 minus gives us MnO4 minus plus MnO2। ठीक है, could you balance this equation in the basic medium? कर दो, जल्दी से बैलेंस कर दो इस इक्वेशन को। दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।